بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم اللہ۔ خبروں، تبصروں اور تجزیے کے ساتھ آج دنیا کے پاکستانی سمیت بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی عید قربان منا رہی ہے اور سنت ابراہیمی کی یاد میں جانوروں کی قربانی ہے۔ میں آج پوری قوم کو، تمام مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی پروفیسر احسن اقبال صاحب کی، جو ہمارے منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ عمران خان 5 سال جیل میں رہے۔ کون سی عوام چاہتی ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، وردی والی یا بغیر وردی والی۔ اگر وردی والی چاہتی ہے تو 4 وردی والے اگر چاہتے ہیں تو پھر 26 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں، ان 4 لوگوں کی بات مانی ہے۔ لیکن آج انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھنے کی پلاننگ۔ اب پلاننگ کون کر سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور 5 سال جیل میں رکھنا کسی کے کیا اختیار میں ہے؟ وہ جو وقت کے زمینی خدا ہیں، یا جو کبھی بھی زمین پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے رب نے فرعون کا لقب عطا فرمایا۔ وہ فرعون ناکام و نامراد ہوا، ہمیشہ ناکام ہوا۔ ہو سکتا ہے اس کی رسی تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہو، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہو، ہدایت کی ڈھیل دی ہو، لیکن بہرحال ہر فرعون کا انجام ایک ہی ہے، اور وہ ہے شکست۔ بہرحال عمران خان کو جس طرح روکنے کی کوشش کی گئی، جس طرح اس کے راستے کو دیوار لگا کر بند کرنے کی کوشش، جس طرح اسے ہمہ جہتی کوششیں کی گئی، ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس کی گئی، انتخابی نشانات کیے گئے، الیکشن کمیشن، فوج، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، یعنی ہر ادارہ جو راستہ روکنے کی کوشش کر سکتا تھا اس نے اپنے تئیں کوشش کی اور اپنی چال چلی۔ لیکن یہ قرآن کا حکم ہے کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔ اب وہ پلان کر رہے ہیں اپنا، یقیناً ہمارا رب جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم جس سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، مالک کل ہے، تو اس کے اختیار میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کس طرح وہ حالات کو قابو میں کرتا ہے، یہ شاید ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب اس سارے قضیے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے موجودہ قاضی القضاء یا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب، جو زبانی تو نہیں کہتے، عملی طور پر یہ ضرور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہے اس ملک کے، اختیار کل رکھتے ہیں اس ملک پر۔ اب انہوں نے ٹیریان وائٹ کے کیس کو بھی یہاں لگوانے کی کوشش کی ہے، اسے کریں گے۔ جیسے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کا کیس سن رہے ہیں 20 تاریخ کو، اور
हालांकि अभी तक उसका तफसीली फैसला नहीं आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस मुख्तसर फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि काजी साहब सुम्मुम बुकमुन हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, क्या हो गया उन्हें? कानून की किताबें नहीं पढ़ी? क्या उनके वालिद भी यही सब कुछ करते रहे अपनी पूरी जिंदगी में? काजी मोहम्मद ईसा साहब, बज़ाहिर उन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ था जमहूरियत का, कायदे आज़म के साथियों का, तो क्या उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था? जो काजी साहब इस वक्त जस्टिस मुनीर जूनियर या जस्टिस मुनीर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए तो काबिल फ़ख्र बात होती कि काजी साहब जस्टिस भगवान दास बन जाते, जस्टिस ठाकुर दास बन जाते, काश ये बन जाते, जस्टिस मुनीर ना बनते। बहरहाल ये उनकी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी फितरत है, वगरना ऐसा कि नशा शराब में होता तो नाश की खुलत बोतल। ये तो फितरत की बात है कि इंसान अपनी फितरत की तरफ जाता है, और काजी साहब भी गालिबन अपनी फितरत ही की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वजीर आजम के 100 दिन के कारकर्दगी की खिताब पर हम कल फिर गुफ्तगू करेंगे, और कल सिर्फ उसी पर ही हम गुफ्तगू करेंगे जिस पर हमने कल भी गुफ्तगू की थी, और यकीनन एक तबाहकुन खिताब था। लेकिन 100 दिन मुकम्मल होने पर जो हमारी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है उसके तो क्या ही कहने। उस पंजाब में जिसमें 70% आबादी देही है और उसका दारो मदार ज़राअत पर है, गंदम काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उन्हें गंदम में जलील और रुस्वा किया गया। 75% से 70% से 75% कम दी गई कीमत पर गंदम खरीदी गई। किसान का खर्चा पूरा नहीं हुआ 70% लोगों का, और 55% लोग जो हैं वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश हैं। क्या कहने, झूठ बोले तो सफेद झूठ तो ना बोले, कोई और झूठ बोले। ये तो मेरे ख्याल में सूरज पे जब झूठ बोलने की कोशिश कर, और ऐसा झूठ जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये मरियम बीबी ने जो कुछ किया खुसूसन किसानों के साथ, और वो भी पंजाब के किसानों के साथ, उसका तो जवाब नहीं है। उसकी मिसाल पाकिस्तान की 78 साल तारीख में नहीं मिलती। बहरहाल फिर भी एक सर्वे उन्होंने बनवा लिया, सारे पैसे खर्च कर रहे हैं तो सर्वे के नताइज भी अपनी मर्जी से करेंगे। सिंध में जो हुकूमत हमारी चल रही है उसमें पट्टे पे दी गई है, वो पहले 15 साल का पट्टा था, 5 साल का मजीद लीज बढ़ा दिया गया है, पीपल्स पार्टी को दे दी गई है 20 साल की लीज पर। अब 16वां साल चल रहा है। इंसान तो मारे जा रहे थे, सहाफ़ी कत्ल हो रहे थे, घुटकी में हुए, सक्खर में हुए, कराची में हुए, लोग गिरफ्तार भी हुए, MNA MPA भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद वो ज़बरदस्ती जिस तरह वो मुआहदा करा लेते हैं, राजीनामा करा लेते हैं, माफ़ीनामा करा लेते हैं, कराते रहे। अब बात इस हद तक पहुंच गई है कि लोग अपनी फसल में किसी बेज़बान जानवर के आने पर उस जानवर की टांग तक काट देते हैं। जैसा एक ऊंट का वाकया पेश आया कि जी, एक हैदराबाद के करीब एक जगह पर एक ऊंट का सांगड़ में गालिबन, तो एक ऊंट की टांग काट दी गई। अब उस ऊंट को कराची लाया गया है, और एक NGO जो है वो अपने खर्च पर उस ऊंट का इलाज भी करवा रही है, और उसकी मसनूई टांग लगवाने की कोशिश भी कर रही है। लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुल्जमान गिरफ्तार हैं, और उन्होंने नाम भी बता दिया है कि किसके कहने पर हमने ये टांग काटी। और हमारी सिंध हुकूमत जो अरबों रुपए कमा रही है, खरबों रुपए कमा रही है, वो ऊंट की एक टांग नहीं लगवा सकती मसनूई। उसके लिए भी उसे NGO की जरूरत पड़ रही है। वो NGO लगी हुई है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जो जानवरों से मोहब्बत करने वाली तंजीमें हैं वो भी इस पर लगी हैं। लेकिन इस पर मजेदार बात इस यहाँ नहीं रुकी, बल्कि हैदराबाद के ही करीब एक वाकया पेश आया। 2 गधों में लड़ाई हुई। वैसे थे तो इंसान, गधे वाले थे तो वो गधे ही थे, वो गधा गाड़ी के मालिक थे दोनों। तो वो जो 2 गधे वाले थे उनकी आपस में लड़ाई हुई, और एक शख्स ने तैश में आकर अपने मुखालिफ गधे वाले के गधे की टांग काट दी।
तो भाई इंसान बनो, इंसान, गधे ना बनो। लेकिन ये कौम ही पूरी गधा बन चुकी है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इस पर हम कल मजीद गुफ्तगू करेंगे। मौलाना अताउर रहमान की एक गुफ्तगू है जो उन्होंने सेनेट में की और इंतहाई मुश्किल गुफ्तगू थी, इंतहाई तकलीफदेह थी। उसका जिक्र बज़ाहिर नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा चूंकि ऐवान में हमारी हो गई है वो गुफ्तगू। उसमें जब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के चेहरे के तासुरात देखने के लायक थे, जब मौलाना अताउर रहमान गुफ्तगू फरमा रहे थे और 15-20 मिनट की तकरीर में सिर्फ एक लफ्ज़ बोल सके बड़ी मुश्किल से, जब उन्होंने एक लफ्ज़ एक्सपंज किया तो सिर्फ ये कहा कि ये लफ्ज़ मैं एक्सपंज करता हूँ, हज़फ करता हूँ कार्रवाई से। बहरहाल इस पर हम कल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हम इजाज़त चाहते हैं ईद की मुबारकबाद के साथ। एक मरतबा फिर ढेरों मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।